कि ये फर्टिलाइजर बिजनेस ने अपनी जो 4 महीने काम किया, 2 महीने तो बंद था, 4 महीने जो काम किया उसमें सबसे सब्सिट्यूट इम्पोर्ट्स 22, अभी भी हम ये जो यूरिया हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 22% सस्ता है इंटरनेशनल प्राइस से, which is a good thing for the local manufacturing. Again, Engro has contributed through LNG terminal 15% of the gas supply. Again, this has been a very consistently high time of I would say capacity utilization of the LNG terminal. और इसके अलावा हमने obviously गवर्नमेंट एक्सचेकर में पैसे जमा कराए and continue to produce the electricity because as you may know this management control over the thermal assets still belongs to Engro जब तक सारी conditions पूरी नहीं हो जाती. The handover will happen, जैसे मैंने आपको बताया, end of Q1 of next year is the anticipated timeline. कैपिटल एलोकेशन साइड पे एज यू ऑलरेडी नो कि ये एक रीस्ट्रक्चरिंग चल रही है जिसमें दाऊद हर्कुलिस की स्प्लिट हुआ है और एंग्रो कॉर्प डीलिस्ट हो जाएगी, अनलिस्ट हो जाएगी, एंड देन विल देयर शेयरहोल्डर्स विल बिकम पार्ट ऑफ द एंग्रो होल्डिंग्स. आई वुड से जो डीएच आज का जो नाम है वो रीब्रांड हो जाएगा एंग्रो होल्डिंग्स के तौर पे. उसकी इफेक्टिव डेट 2025 है. कोर्ट ने उसको already approved कर दिया है. Now we are just completing the formalities for that to happen. So pleased to announce that that project is going on time or almost in line with our expectations. So that should complete and bring more clarity after January 1, 2025. So thermal divestments की मैंने बात ऑलरेडी कर ली, मैं रिपीट नहीं करूंगा. और टावर फुटप्रिंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं. इंटरेस्ट रेट्स की वजह से टावर के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी चैलेंजिंग है, इसलिए थोड़ी स्लो हो गई है. बट एज इंटरेस्ट रेट्स गो डाउन आई एम वेरी वेरी होपफुल कि ये मार्केट दोबारा से पेस पकड़ लेगी एज वी गो अलोंग. इस बार हमने थोड़ा लिमिटेड स्केल पे टावर्स को एक्सपेंड किया है इन द ऑन फ्रेश एयर बिजनेस, लेकिन as the interest rate goes down below 17, 16, I'm sure that business starts to make much more sense with that kind of interest rates. So something to look forward to, inshallah. Awards वगैरह की डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा. We will share that on the website. ठीक है, आगे चलते हैं. Interestingly, I think इस बार P&L को समझना जरूरी है because obviously पिछले साल इसी profit and loss के अंदर we used to have the energy vertical number. अब वो as per the accounting convention उसको discontinued operation में आ गया है वो. So it's no longer a part of our current year results. इसलिए आपको एक 42% dip नजर आ रहा है. But as I said, this has nothing to do with the performance. It is only the exit of the energy that is causing that part, because we have treated that as a discontinued operation. But the below the नीचे जो आप numbers देख रहे हैं, the second line है, that's more relevant because ये है continued operation जिसमें other than energy portfolio है, alhamdulillah that has done very well especially because of the fertilizer and terminal businesses. We are plus versus last year and owners share के अंदर काफी खातिर improvement नजर आई है. और obviously earnings per share में भी. This is the real apple to apple comparison for continued businesses, which is 5 billion and the EPS of 9.09. Then if we look at the standalone, alhamdulillah यहाँ पे भी चीजें काफी बेहतर हैं. रॉयल्टी डिविडेंड इनकम भी बेहतर है, प्रॉफिटेबिलिटी भी बेहतर है और अर्निंग्स भी बेहतर है. और आप लोगों ने देखा होगा कि हमने 11 रुपीस पहले दिया था, कल 8 रुपए दिया है, तो दैट टेक्स अस टू 19 रुपीस इन द फर्स्ट 2 quarters of the year, which is I would say it's in line with our payout expectation. जो हमने methodology हमने expect की थी इस साल के लिए, तो we are fairly poised to be there at for the end of the year. So हमें लगता है कि जो dividend का flow है वो that primarily has depended on Engro fertilizers, which will continue in future as well. So Engro EPS पे हमने बात कर ली. स्टैंड अलोन में कोई खास बात और हाईलाइट करने की नहीं है फर्टिलाइजर के अलावा, बट कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन इनिशिएटिव हम एंग्रो कॉर्प लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं. उसके ऊपर आने वाले एनालिस्ट ब्रीफिंग में हम इस पे ज्यादा शायद तफसील से बात करेंगे. बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वर्क इन प्रोग्रेस बिकॉज विद दिस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट ऑब्वियसली कॉस्ट के ऊपर we continue to be watchful and try to adopt any austerity measures that are required.
So that's on the business side. We'll talk about each business very briefly. इसलिए मैं अभी इनके consolidated के results की reasoning पे नहीं जा रहा, but let's move on. Okay, fertilizer में alhamdulillah it has been a great half year. माशाल्लाह last year के मुकाबले में efficient operation, better margins, better supply of gas भी काफी consistent रही है. और efficiency especially we are really happy to report कि efficiency दोनों plants की बहुत बेहतर है. Although there's a turnaround in this year, but still we have done very well माशाल्लाह. और ये आपने फर्टिलाइजर की एनालिस्ट ब्रीफिंग भी अटेंड की होगी, सो आई थिंक वहाँ पे आपको काफी ज्यादा डिटेल्स इसकी मिली होंगी. वॉल्यूम में जो डिप है वो प्राइमरीली इट्स रिलेटिंग टू कि हमने प्रोड्यूस भी कम किया है और इसी तरह इसकी सेलिंग भी कम हुई है बिकॉज इन्वेंट्रीज इतनी थी नहीं. बट दैट्स जैसे मैंने कहा प्लांट दोबारा से ऑपरेशनल हो गया है. देयर इज नथिंग टू वरी और बल्कि इट्स अ वेरी साई ऑफ रिलीफ कि वो इतना बड़ा टर्न अराउंड खैर खैरियत से in time निकल गया. And you know a lot of hard work done by the management. A lot of credit goes to the efforts management and the plant management especially. Polymers, not a very good half year. Again इनकी भी analyst briefing जिन्होंने follow की है वो they are very well aware के bit of a both I would say local भी demand की बहुत ज़्यादा कमी है. Construction activities बहुत subdued हैं. And globally भी जो core delta या जो इसकी business की जो pricing है the ethylene versus PVC, that's not helping at all. So Pakistani demand versus the plus the global demand, especially China के retail sector, real estate sector का जो lack of performance है, that is hitting this business very hard. And we just hope कि it's a commodity business. इसी business ने 1-2 साल से बहुत जबरदस्त profits दिए थे, लेकिन इस वक्त it is going through a bit of a rough patch. Nothing wrong with the business dynamics really. It's the global and the local demand dynamics that are hitting it. So we are hopeful that they will come out of it soon. जैसे ही ये ट्रेंड बेहतर होता है in terms of demand पिकअप होती है पाकिस्तान के अंदर इंशाल्लाह. So अभी फिलहाल हम नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा इसके लिए I wouldn't be very optimistic in the very near future, but a few months, a couple of quarters, 2-3 quarters down the road, we expect कि इसमें एक रिवर्स ट्रेंड आएगा जो कि पास्ट में भी हमने देखा है कमोडिटी साइकिल के हवाले से. वॉल्यूम्स इसके भी ठीक रहे हैं पॉलीमर्स के, विच इज हार्टनिंग टू सी. प्रोडक्शन वगैरह भी ठीक रही है. सो हम वॉट एवर कंपनी कुड डू दे आर ट्राइंग टू डू, बट अगेन कुछ फैक्टर्स बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं. We hope those to be arrested soon. ठीक है, आगे चलते हैं. Terminal, as I said, mashallah, very well done on of the volumes they have handled. Market share भी काफी consistent रहा है और all in all this business has done very well in the first half. थोड़ा सा impact I would say devaluation ना होने का इसकी रुपये के ऊपर आया है, लेकिन that has been very well offset by the volumes that they have done, especially LPG volumes में जो increase है और chemicals handling भी अच्छी हुई है. सो डॉलर डिनोमिनेटेड में तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रहे हैं, बट क्योंकि डॉलर में कोई ऐसा इंक्रीज नहीं आया और तो आई वुड से रुपी में भी एक कंसिस्टेंसी नजर आएगी. बट दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आई वुड से ये तो एक जस्ट अ टेम्पररी फेज है. बट टर्मिनल आई वुड से इज इन अ ग्रीन जोन. आई वुड से Engro Onfashare, again, this business is something for the future. ये हमें याद रखना चाहिए कि this business इसके आज के short term ठीक है, this business is not making money really because of the interest factor. The good thing is कि EBITDA level पे this is really heartening to see कि business बहुत अच्छा कर रहा है. जैसे ही interest cost जैसे मैंने कहा था कुछ नीचे आएगी, this business will start generating cash flows, वो भी compounding basis पे. So this is something which we will continue to focus as a business for the future, and we want to be the leading ITC in Pakistan, inshallah. We are the largest, and we want to continue to be in that zone going forward as well. तो इस पे ये growth की initiatives इस पे चलते रहेंगे, all depending on how quickly the interest rate become friendly. So that's more or less on Freshare. We have about 4,000 plus towers right now. ठीक है. So Engro Energy में discontinued business है. So लेकिन operations चूँकि हम manage कर रहे हैं उसके अल्हम्दुलिल्लाह it has been a very good first half for Engro Energy as well, whether it's EPQL or our third business.
रिकवरीज भी गवर्नमेंट से अच्छी आई हैं, प्लांट ने ऑपरेट भी बहुत अच्छा किया है, बहुत सस्ती तरीन बिजली अभी भी ये मुल्क को दे रहा है। वेरी प्राउड टू से कि पूरे मुल्क में दिस इज द सेकंड चीपेस्ट सोर्स आफ्टर, मेरिट लिस्ट में 80-90 प्लांट्स हैं तो उसमें नंबर 2 पे आ रहा है ये, which is such a proud moment for all of us. So I think uh, more work needs to be done in this area by the government, ताकि जितना हम यहाँ से बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं वो हमारे पावर सेक्टर के हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी को सॉल्व कर सकते हैं इंशाल्लाह। बट अगेन टाइम विल टेल कि हम कितना इस नेचुरल रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं going forward. For us, this is a strategic decision to divest, and that divestment is in progress. So मैं already आपको बता चुका हूँ. Engro Exim FZD, our trading arm, that is also doing very well. They have generated a captive plus non-captive revenue of $200 million and also traded volume. So I think they've done well. They're focusing on third-party DAP cargoes and few other third-party deals. So that business is gradually but slowly picking up. हम कोई बहुत ज़्यादा रिस्की इसमें ऑपरेशंस नहीं कर रहे, मोस्टली इस थिन मार्जिन पे काम कर रहे हैं, बट लेस रिस्की ट्रेडिंग में ज़्यादा पार्टिसिपेट, स्पेशली इन द एरियाज वेयर वी हैव एक्सपर्टीज लाइक fertilizers and petrochem, etc. So that business is also progressing pretty well. आगे चलते हैं. So ending with Engro, sorry, I keep calling it Engro Foods. Sorry, Friesland, Campina, Engro. Revenue-wise, yes, there is an increase of 17% of client growth. Again, portfolio mix भी अच्छा रहा है, expansion भी अच्छी रही, retail network पे points of presence बढ़े हैं. Again, challenge इस business के लिए भी थोड़ा सा एक current challenge है interest cost, क्योंकि they are sitting on few loans which are costing much more than what we anticipated. So that is dragging the profitability down a little bit. They made 1.3 billion in the half year. बट जो आगे हम देख रहे हैं कि सेल्स टैक्स की वजह से जो पैकेज मिल्क पे स्ट्रेन आएगा, दैट इज समथिंग टू बी सीन. अर्ली डेज ऑफ कोर्स, बट आई थिंक दैट्स वेरी सैड थिंग फॉर द कंट्री के पैकेज मिल्क इतना महंगा है और लूज मिल्क जो है वो उसके मुकाबले में एक बहुत बड़ा डेल्टा है. तो जो कन्वर्जन रेशो है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हो चुका है, होने की हमें अंदेशा है इस बात का कि इट विल बी इम्पैक्टेड. सो या नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर पैकेज मिल्क इंडस्ट्री. बट वी होप कि सैनिटी विल प्रिवेल और इसको रिकंसिडर किया जाएगा कहीं ना कहीं आगे जाकर. Moving on, won't spend too much time on these. You can have a look at the website. आगे चलते हैं. And sustainability initiatives, these are very interesting ones on environment, society, and people side. Happy to share details whenever you want. But filhal, in the interest of time, I will not go into each of the details. So as I said, we'll leave more time for the question and answers, and I want to open the floor. Shamir, जैसे भी आप जो sequence भी आप follow करना चाहते हैं, you want for the verbal first or written first, leave it to you, sir. जी शमीर. Mr. Abdullah Umar, you can please go ahead and ask your questions. जी अब्दुल्ला उमर साहब, आप शायद म्यूट पे हैं. शमीर, आपको कंट्रोल तो नहीं देना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा उनको. अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब, मेरा सवाल पर्टेनिंग टू थर्मल एसिड्स की ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है. एक चीज़ समझनी थी कि जब एसपी आपकी प्राइस अनाउंस हुई थी 34.7 बिलियन, तो उसके बाद से अब तक जो भी डिविडेंड्स वगैरह, जैसे एंग्रो एनर्जी ने भी आई थिंक 1.8 बिलियन का डिविडेंड दिया है, फिर ईपीक्यूएल ने भी डिविडेंड दिया है. तो दिस डिविडेंड विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एट द एंड ऑफ एसपीए, लाइक, या एसपीए की प्राइस अनचेंज रहेगी बाय द कंक्लूजन ऑफ दिस डील इन मार्च 25, सॉरी. ऐसे ही है अब्दुल्ला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. जब आपने प्राइस एग्री कर ली है इससे 34 व्हाटएवर जो नंबर था, मैं एग्जैक्ट 34.75 शायद है, तो जो भी नंबर था उसमें अगर आप जो भी डिविडेंड्स उसके बाद एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके सेल प्रोसीड से एडजस्ट हो जाएगा नेट ऑफ टैक्स. तो
basically this is part of the SPA and this will be considered as sales consideration, yeah, sales proceeds, I would say, for the and this is very normal in any deal. Yes, right, right, sir. And second brief question with regards to the utilization of proceeds कि आई थिंक जो पॉलीप्रोपिलीन वाला प्रोजेक्ट है वो भी शेल्फ हो चुका है काफ़ी टाइम से, और आई थिंक जो सोलर पार्क का कुछ प्रोजेक्ट था रिन्यूएबल पार्क का, वो भी आई थिंक नॉट एक्टिवली बीइंग परसूड बाय द कंपनी. सो आर देयर एनी फर्दर प्रोजेक्ट्स दैट जो कंपनी के माइंड में हो जिसके ऊपर कंपनी कंटेम्पलेट कर रही हो? देखिए, कुछ चीज़ों की फिजिबिलिटी हम कर रहे हैं. इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. कुछ चीज़ें हैं इन द वर्क्स. अभी वो इतनी मिच्योर नहीं है कि हम इस फोरम पे बात कर सकें, बट नॉट एट अ स्टेज वेयर दीज आर अनाउंसेबल. कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम अभी भी हमारे पाइपलाइन में हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, क्योंकि जैसे मैंने कहा उस पैसे को रियलाइज करने में भी हमें तकरीबन 6 से 9 महीने का टाइम लगेगा. So by that time, hopefully we are expecting कि वो coincide करेगा with some of the deals that we are considering, उनमें से कोई mature होती है. दूसरी जो important बात है वो ये है कि शायद आप लोगों को इसको पहले भी इस ब्रीफिंग में बताया गया था या दूसरी ब्रीफिंग्स में बताया गया, जब हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है रीस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट विद दाऊद हर्क्यूलिस, आफ्टर विच फ्रिक्शनलेस मूवमेंट ऑफ कैपिटल हो सकेगी, तो ये भी हो सकता है कि एंग्रो होल्डिंग्स का जो कयाम जनवरी 1 के बाद होगा, that platform will also be utilized to make investment and capital allocation. So कुछ projects यहाँ से भी हो सकते हैं, कुछ projects वहाँ से भी हो सकते हैं, because eventually AngroCorp will become a delisted company and work as a 100% held company of Angro Holdings, which is a Dawood Hercules right now. So I think दोनों platform open होंगे तो spectrum काफी बड़ा हो जाएगा. The choices inshallah will be much more than what we have right now. अभी तो हम अपने verticals में देख रहे हैं, जिसके लिए मैंने आपको बताया कुछ चीजें pipeline में हैं हमारे पास, लेकिन those options काफी wide हो जाएंगे after January 1, 2025, inshallah. Right, right. Many thanks, Farooq sir. Many thanks. Thank you. जी, कौन any other? Are there any other questions? जी, फहद साहब, फवाद यूसुफ साहब. जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शमीर अनम्यूट कर दें प्लीज. जी, मुझे पूछना था कि अभी आपने बताया कि आपके एनर्जी के एसेट्स हैं और उस पर जो डिविडेंड दिया है वो उसकी प्राइस में से माइनस हो जाएगा, ऐसे ही आपने कहा ना शायद? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कहा. तो उन्होंने जो लिबर्टी वालों ने आपको जो बाय किया है आपसे जो एसेट, उसके उन्होंने पैसे आपको दे दिए हैं जो आप उससे माइनस करेंगे? जब उनके पैसे ही नहीं है तो डिविडेंड क्यों माइनस करेंगे? नहीं, सॉरी, शायद मैं वाज़ेह नहीं कर पाया. जो 34 पॉइंट समथिंग बिलियन रुपीस अग्री हुआ है, अगर फर्ज करें उसमें से 4 बिलियन का डिविडेंड आ गया इन द मीन टाइम, तो जब तक वो पैसे तो देखें उस वक्त आएंगे ना जब डील की सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, जो मैंने आपको बताया Q1 2025 में एक्सपेक्ट कर रहे हैं. सो 34 में से अगर मिसाल के तौर पे 4 अरब के डिविडेंड आ गए इन द मीन टाइम एंग्रो के पास, एंग्रो का शेयर, तो फिर वो 34 की जगह 30 बिलियन देंगे हमें, जाहिर बात है. इससे अगर 2-3 साल तक नहीं होता तो आप उनको फ्री में दे देंगे, मतलब जितने भी डिविडेंड होंगे वो तो आप लेके नहीं, माइनस कर ऐसा नहीं देंगे. होगा. देखिए हर डील की एक लॉन्ग स्टॉप डेट होती है. सो फ्री ऐसा तो नहीं होगा कि डील जो है वो 2-3 साल तक अगर चल रही है तो इसके ऊपर नहीं, कोई जब उनके पैसे रियलाइज नहीं हुए तब वो उसको माइनस क्यों करेंगे? मुझे ये बात समझ नहीं है. फिर एनीवे, देखिए, मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ. एक कीमत अग्री हुई है, दे हैव टू पे अस 34 बिलियन, राइट? अगर उस 34 बिलियन में जिस चीज के पैसे हैं वो है पूरी की पूरी थर्मल एसेट्स, उन थर्मल एसिड्स की एक इफेक्टिव डेट है, से फॉर एग्जांपल जनवरी 1 2024 डेट है, इसके बाद से चीज उनकी है. उनकी चीज में से अगर मैं डिविडेंड एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो पैसों में से तो काट ही लेंगे ना. ये चीज उनको बिलोंग करती है. आज भी वो हमारे लिए डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है. वो द मनी दैट वी आर अर्निंग हम अपने प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास उनकी अमानत है एक तरह से, सब्जेक्ट टू कंडीशंस प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स. चाहे वो पैसे आपको रियलाइज हुए हो ना हुए हो,
चले। नहीं नहीं, पैसा तो एसपीए साइन हो गया तो पैसा तो हमें मिलेगा इवेंचुअली, बट आफ्टर द कंडीशंस एंड अप्रूवल्स आर कंप्लीट ना। ऐसे तो हैंडओवर, जब तक हैंडओवर नहीं होगा पैसे कैसे देंगे वो? ये हमारी जिम्मेदारी है, एक जॉइंट जिम्मेदारी है कि हम अप्रूवल प्रोसेस को जल्द से जल्द मुकम्मल करें और जो बायर को एसेट हैंडओवर करें। बिकॉज ये आईपीपीज हैं, तो आपको पता है कि आईपीपीज बहुत ज्यादा रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, बीसियों किस्म की एग्रीमेंट्स होती हैं, चाइनीज लेंडर्स हैं, पाकिस्तानी रेगुलेटर्स हैं, तो इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। अगर नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती तो 3 से 6 महीने लगते, इसमें हम बात करें 8 to 10 months रफली हमारा जो टोटल टाइम पीरियड है, अप्रैल से लेकर अगले मार्च फेब तक। सो दैट्स द रीजन। अच्छा, बट ये सब एक कुछ एंटिसिपेटेड था, कोई नई चीज, कोई नई बात नहीं है इसमें, ये सब कुछ एंटिसिपेटेड था, कोई भी नई बात नहीं है इसमें। एक चीज बता दें आप कि ये 34 बिलियन का जो आपने इसको एग्री किया है इसको सेल करने का, इसकी एनुअल नेट इनकम कितनी थी इस सारे वेंचर की? देखिए थोड़ा सा डिटेल आंसर हो जाएगा ये, लेकिन हमने पहले भी कवर किया है। बट जो बिजनेस हमने थर्मल एसिड सेल किए हैं उसका प्रॉफिटेबिलिटी का एलिमेंट काफी ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज देयर इन द वे उनका प्रॉफिट। अगेन थोड़ा एट द कॉस्ट ऑफ बीइंग अ लिटिल डिटेल्ड, इसकी अकाउंटिंग को समझना जरूरी है कि बिकॉज उसके टैरिफ के अंदर उसका लोन भी शामिल होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी वाइज एक आईपीपी जो होती है वो पहले 10 सालों में बहुत ज्यादा प्रॉफिट अक्रू करती है। कैश में नहीं कन्वर्ट होता, बट अक्रूवल बहुत ज्यादा का होता है। एंड उसका टैरिफ का डिजाइन इस तरीके से है कि आपका प्रॉफिट एक आपके कैश प्रॉफिट से बहुत ज्यादा होता है, बुक प्रॉफिट्स। सो दैट्स वाई तकरीबन 15 से 16 अरब रुपए का इसका टोटल प्रॉफिट का इम्पैक्ट होता है हमारे पीएनएल के ऊपर, जो कि एसेंशियली डिविडेंड में कन्वर्ट नहीं हो रहा था बिकॉज सर्कुलर डेट है और ये अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है। तो ये थोड़ा सा डिटेल्ड आंसर है, अगर आप चाहें तो हम आपसे सेपरेटली इस पे एंगेज कर सकते हैं। इसको हमने पहले भी 2-3 बार एक्सप्लेन किया है एंड वी कैन डू दैट अगेन टू यू। नहीं, ये मुझे तो खैर ये सब कुछ पता है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 15-16 अरब की अर्निंग वाली चीज आपने 34 बिलियन में दे दी। खैर, जैसे मैंने कहा ना फाद साहब, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज के ऊपर है एंड दिस इज अ वे नॉर्मली डील्स आर डन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इसको हम ऑफलाइन ले लें, क्योंकि ये कॉन्वर्जेशन बहुत लंबी कॉन्वर्जेशन है कि किस तरीके से प्राइस जस्टिफाई होती है या व्हाई डू वी थिंक इट्स अ फेयर प्राइस फॉर दैट एसेट। उसके बाद रिस्क और रिवॉर्ड सब होते हैं ना, जाहिर है आईपीपी इंडस्ट्री के कुछ रिस्क भी हैं, कुछ रिवॉर्ड्स भी हैं, और आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि आजकल क्या चल रहा है मार्केट। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो हम अलग से इस पर तफसीली बात कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। राइट जी, राइट, थैंक यू। Mr. Javed Ashraf, you can go ahead. जी जावेद अशरफ साहब, आई होप कि आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन ईपीसीएल से रिलेटेड, अभी आपने ब्रीफिंग में बताया कि नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर वो अंडर प्रेशर रहेगी, तो कोई लॉन्ग टर्म के अंदर इसका क्या फ्यूचर है कि अगर डिमांड इंटरनेशनली नहीं ज़्यादा बढ़ती तो ये बिजनेस अंडर प्रेशर ही रहेगा? और सर थोड़ा सा एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि जो एंग्रो कॉर्प का पे आउट है वो उसकी क्या परसेंटेज है? ओके, सो पहले का जवाब दे देते हैं। देखिए, ईपीसीएल जो पॉलीमर बिजनेस है वो कमोडिटी साइकिल से गुजरता है। अगर आप पिछले कुछ सालों का ट्रेंड भी देखें तो लास्ट 2021 प्रोबेबली 15 अरब बनाए थे इस बिजनेस ने, इसके बाद 8-9 अरब या 10 अरब बनाए थे। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस कोई ऐसे जोन में दाखिल हो गया जहां से वो निकल नहीं पाएगा। इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब डाउन सर्कल बिजनेस का आए, अप सर्कल आएगा तो इंशाल्लाह बहुत पैसे अच्छे बन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया 2-3 सालों का। अब एक ऐसा साइकिल है जिसमें हम समझते हैं वो नीचे की तरफ, कोर डेल्टा भी नीचे है, पाकिस्तान में भी डिमांड कम है, तो दैट्स इट्स अ मिक्स, आई वुड से दोनों साइड से थोड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात ये है कि बिजनेस शुड नॉट लूज टू मच मनी इवन इन दिस। अगर हम इस साइकिल में भी बहुत बड़ा लॉस नहीं करते हैं या क्लोज टू ब्रेक इवन इंशाल्लाह कर पाते हैं, तो ये बड़ी रिलीफ वाली बात है, क्योंकि जब अच्छा वक्त आएगा तो पैसे बनाएंगे और बुरा वक्त आएगा तो लॉस नहीं करेंगे। तो ये दिस इज अ कॉम्बिनेशन वी वांट टू सी इन अ कमोडिटी बिजनेस ऑनेस्टली। सो दैट्स वाई इसकी कॉस्ट के ऊपर, इसकी एफिशिएंसी के ऊपर, जिस इसकी इन्वेंट्रीज के ऊपर हर वक्त काम किया जाता है, ताकि बुरे वक्त में ये बिजनेस ज्यादा नुकसान ना दे। ठीक है, छोटा लॉस आ भी गया तो ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम,
सो अभी आप फ्यूचर की बात करें तो देखें फ्यूचर में कमोडिटीज किस तरह से ऊपर नीचे होती रही हैं, ऑयल हो या कोई और कमोडिटी हो, ये आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। सो आई डोंट थिंक कोई भी ऐसा साइकिल होता है जो हमेशा के लिए, ऑयल भी आपको याद है 30-40 पे गया था, फिर 100 पे गया, फिर 90 पे गया, आजकल 70-71-74 पे। सो इट मूव्स विद टाइम। तो थोड़ा सा सर ये जो जी मैक्रो आप इंडिकेटर जो कह रहे हैं बेहतर हो रहे हैं और कैश रेट भी नीचे आएगा, तो वो भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है, ये वाला बिल्कुल फैक्टर कर भी? सकता है। देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर अगर यहाँ पिक करेगा पाकिस्तान में, तो क्यों नहीं डिमांड पीवीसी की पिक करेगी, हमेशा करती है। अगर कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्लो होगा तो जाहिर बात है ये सेक्टर बहुत डिपेंडेंट है उस सेक्टर के ऊपर, ये वाला बिजनेस। तो एक डिमांड का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। आज बजट से कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ चीजें अच्छी नहीं हैं। जैसे जैसे इंटरेस्ट का एलिमेंट बेहतर होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल विल गो इनटू दीज प्रोजेक्ट्स जिन्होंने काम रोका हुआ है। और दैट्स द होल होप फॉर द लोकल साइड। ग्लोबल साइड पे जाहिर है इंटरनेशनली थोड़ा सा पीवीसी के प्राइसेस में अ, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कुछ क्वार्टर बाद इसमें एक तेजी आएगी, स्पेशली चाइना एंड फ्यू अदर कंट्रीज जिसमें डिमांड अभी थोड़ी सबड्यूड है। जैसे वो इम्प्रूव होती है, बट ये हमेशा के लिए नहीं होता कोई भी चीज, आपको पता है दीज आर स्विंग्स। कभी कभी वो स्विंग 6 महीने के होते हैं, कभी 18 महीने के होते हैं, कभी 12 महीने के होते हैं, एट मैक्स 24 महीने के होते हैं। लेकिन वी आर एक्सपेक्टिंग ऐसी चीजें साल सवा साल में बदल जाती हैं। जी। तो सर दूसरा क्वेश्चन था कि दूसरा, जो पे आई थिंक आउट आपका रेशो है। ओवरऑल पे आउट आई थिंक 70-71% तक है, मुझे जहां तक याद पड़ रहा है स्टैंड अलोन बेसिस पे। अगर मैं ईपीएस और डीपीएस को कंपेयर करूं तो मुझे लगता है इट्स प्रोबेबली 70%। अगर मेरी टीम में कोई इस बात को वैलिडेट कर सके, हमजा या समवन प्लीज। Yes, we are confirming it in the chat. सही है। जी। जी Mr. Noman Ahmed, please go ahead. अस्सलामुअलैकुम सर, मेरे दो क्वेश्चन है सिंपल से। एक तो जिस बिजनेस से आप एग्जिट ले रहे हैं, ये बहुत हाई आरओई, डॉलर ड्रिवन आरओई बिजनेस है। मोर देन 20%, 25% से ऊपर की आरओई सेटल होती है एवरेज। तो आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं कि किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो भी आप इसका काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनमें से चंद कोई एक प्रोजेक्ट का नाम ले सकते हैं जो इस किस्म का डॉलराइज रिटर्न ऑफर करते हो? एक सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अभी जो आईपीपी से नेगोशिएशन की कुछ टर्म्स हो रही हैं, बातें चल रही हैं चाइनीज आईपीपी के साथ भी और सभी के साथ जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो ये चीज आपके एसपीए में शामिल है कि अगर कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट कोई आरओई छेड़ती है या डॉलर डॉलर की इंडेक्सेशन को छेड़ती है आगे जाके, तो वो किस तरह से आप लोगों के लिए वर्कआउट करेगा और इसको कैसे देखते हैं? एसपीए कैसे इसे कवर करेगा और इस पे आपका व्यू है क्या? ये जो कुछ इस वक्त बातें चल रही हैं, टॉक ऑफ द टाउन है, वो उसको कैसे आप एसपीए के अंदर भी और एज अ सेक्टर, पावर सेक्टर के अंदर कैसे इस चीज को देख रहे हैं, इस पूरे मैटर? ठीक है, तो नुमान साहब थैंक यू फॉर द क्वेश्चन, दोनों बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, थैंक यू फॉर आस्किंग देम। देखिए मैं वन बाय वन चलता हूँ। पहला सवाल आपका था कि ये जो हाई आरओई डॉलराइज्ड बिजनेस है थर जैसा, स्पेशली बिकॉज कादिरपुर का बिजनेस तो रुपी बेस्ड हो चुका है आफ्टर रीनेगोशिएशन, एज यू मे बी अवेयर, पुरानी आईपीपीस के साथ जो किया था। तो लेकिन थर का और माइन का बिजनेस डॉलराइज्ड है, और ऑन द पेपर एटलीस्ट वो हाई 20s में उसका आरओई होता था एक जमाने में। तो उसमें देखें नवाज साहब, मेन बात क्या है कि वी हैव, ये हम कोई डॉलर रिटर्न टू रिटर्न स्वैप की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एंग्रो ग्रुप ने एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया कि वो अपने थर्मल एसिड्स को डाइवेस्ट करेगा। उसकी का दो चार रीजंस हैं, लेकिन वन ऑफ द रीजन वो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपोजर बहुत ज्यादा हम अपने ग्रुप में बैलेंस ऑफ करना चाहते हैं, बिकॉज हमारे कुछ बिजनेसेस गैस की अवेलेबिलिटी पे डिपेंडेंट है, कुछ ड्यूटी के ऊपर डिपेंडेंट है, कुछ एलएनजी बिजनेस में गवर्नमेंट इज अ कस्टमर। यहाँ पे तो टोटल गवर्नमेंट कस्टमर भी है और एक तरह से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कंपनीज है सप्लायर भी थर के ये तो सब बिजनेस में। चीजें पहले से डिटरमाइंड थी जी ना, जी मतलब इसमें कोई जी जी, नई चीज बिल्कुल बिल्कुल, डेवलपमेंट तो नहीं थी। नहीं बिल्कुल। तो ये रिस्क तो एक पहले बात भी थे मेरे ख्याल से, ऐसे ही है, 2017 की आईपीपी लगने से पहले भी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। सो बात सारी ये है कि
the way IPP sector, the way power sector of Pakistan has shaped up, we believe कि हमारे अपनी appetite जो ग्रुप की है उसको थोड़ा सा मिक्स होना चाहिए, B2B में, बिजनेस टू बिजनेस, कमर्शियल बिजनेसेस में होना चाहिए, जिसकी वजह से हमने आज से 4 साल पहले ऑनफ्रेशेयर बिजनेस लॉन्च किया था, विच इज अ नॉन गवर्नमेंट डिपेंडेंट बिजनेस। और हमारी कोशिश ये है कि वी शुड हैव a good mix of government dependent rent seeking fixed return businesses as well as commercial competing B2B businesses. And that's why this decision we're taking, ये इसलिए नहीं था कि हम 20% डॉलर ROI का बिजनेस को हटाकर उसी जैसा कोई और बिजनेस ढूंढ रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज which are good for the portfolio in the long run. तो ये दैट्स द होल पॉइंट। ये इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि वो कौन सा बिजनेस होगा जो 20% डॉलर ROI देगा। वो तो केस टू केस बिजनेसेस इवैल्यूएट किया जाएगा, एंग्रो कॉर्प के प्लेटफॉर्म से भी और फ्यूचर में एंग्रो होल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म से भी। सो ये एक बार पैसे आ जाते हैं आपके पास, जैसे मैंने आपको बताया कुछ अरसा लगेगा उसमें, देन वी डिसाइड द नेक्स्ट स्टेप्स कि इसको लगाना किस फॉर्म में है, स्प्रेड करना है, किसी बड़े एसेट में लगाना है। एंग्रो कॉर्प लगाएगा तो बड़ी इन्वेस्टमेंट में लगाएगा, एंग्रो होल्डिंग्स के प्लेटफॉर्म से करेंगे तो हो सकता है कि बाइट साइज और छोटी इन्वेस्टमेंट में भी जाएं। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन दैट। सो एक कोई रिटर्न का स्वैप नहीं है ये, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। जो दूसरी बात है, जो आपका दूसरा सवाल है, वो है आई थिंक आपने बात की SPA से रिलेटेड। इफ यू कैन रिमाइंड मी, आपका दूसरा सवाल क्या था? कि जो IPP से नेगोशिएशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए SPA बड़ा वाजे है कि जो इस तरह की कोई भी टर्म SPA में एक्सक्लूजन नहीं है। तो एज इज वेर इज का जो कॉन्सेप्ट होता है, यू वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट, एज इज वेर इज की बेसिस पे एसेट को लिया गया है विथ ऑल दी अजम्पशंस। कोई स्टेप आउट्स या ओपनर्स उसमें नहीं रखे गए हैं। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, नो, देयर इज नो सच ओपनर इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, थोड़ी सी एक्सटेंशन के वैसे इस पूरे में आप व्यू क्या रखते हैं इस डेवलपमेंट में, और इसको एज अ सेक्टर क्या देख रहे हो ये आगे? देखिए, ये मेरा अपना जाती हम्बल ओपिनियन होगा कि मैं समझता हूँ ये रीनेगोशिएशन एक बार पहले भी की थी। दिस राउंड जो अभी इन्होंने बातचीत शुरू की है, बहुत अर्ली स्टेज है, कमेटी बनी है एज यू आर अवेयर। ये मोडस ऑपरेंडी पहले भी फॉलो हुआ था जब हमने कादरपुर की रीनेगोशिएशन की थी और बाकी 16-17 IPPs ने की थी। इस बार थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि वो IPPs थी काफी एज्ड IPPs थी, 15-15 साल, 16-16 साल गुजर चुके थे, रिटर्न्स का एक रियलाइजेशन हो चुका था। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज ये IPPs 2015 पॉलिसीज में आई हैं, ज्यादातर बड़ी IPPs, चाइनीज खास तौर पे, और वो इस उम्मीद पे आई हैं कि दे विल मेक सम रिटर्न। अभी तो उनके लोन तक रीपे नहीं हुए उन IPPs में, मोस्ट ऑफ देम, जिनके भी लोन के भी आधे पीरियड बाकी हैं। सो इट्स, मैं इम्पोर्टेड कोल की बात कर रहा हूँ, मैं LNG वालों की बात कर रहा हूँ, मैं थर की बात कर रहा हूँ, जो कि बड़ी IPPs हैं। सो टू रीनेगोशिएट इट विल बी मच मोर डिफिकल्ट बिकॉज इट्स कुछ जगहों पे कंट्री टू कंट्री डिस्कशन भी शामिल होगा। यू हैव टू गो टू द चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज लेंडर्स, एंड वो इतना आसान नहीं होगा। आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, even if we have to come closer to this, and उसकी shape और form भी हमें समझना पड़ेगा because देखें, it's not easy for a country like China to renegotiate, you know, because उनके सारी दुनिया में उनके exposures होते हैं। आज वो पाकिस्तान से renegotiate करेंगे, कल वो कहीं और से कर रहे होंगे। So ये मेरी जाती राय है कि it will be much bigger than what renegotiation took place last time. हाँ, लोन reprofiling, लोन को रिलैक्स कर दें, थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दें, पीरियड बढ़ा दें, ये कुछ चीजें हैं जो इंपोर्टेड कोल को लोकल कोल पे कन्वर्ट कर दें, यू नो, दोज आर प्रैक्टिकली डूएबल थिंग्स। मुझे लगता है ओवरऑल रीनेगोशिएशन थोड़ी सी रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से PPA की रीनेगोशिएशन मुझे मुश्किल लगता है। बट दैट्स व्हाई एनर्जी सेक्टर में जो प्रैक्टिकल चीजें मैं देख रहा हूँ वो इंपोर्टेड कोल का कन्वर्जन है, या फिर लोन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए, कुछ पीरियड बढ़ा दिया जाए। दोज आर स्मॉल स्टेप्स, बट वेदर दे मूव द नीडल, थोड़ा सा टफ है। ये मुश्किलात रहेंगी अभी आगे जाके। बहरहाल चलें। Mr. Javed Ashraf, you can go next. सर मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, बस पे आउट रेशियो का 72% है जी, 72% है। सॉरी, मैं 71 कह रहा था, इट्स 72%। अभी आई जस्ट सो दैट।
तो सर ये जो जैसे ओवरऑल एंग्रो कॉर्प की स्टेटमेंट भी स्ट्रांग है, प्रॉफिट भी स्ट्रांग है, तो क्या मार्केट उसको वो रिस्पेक्ट नहीं दे रही शेयर प्राइस को, जो कि एज कम्पेयर टू कंपेटिटिव दूसरी इंडस्ट्री है? इसकी क्या रीजन है? क्या आउटलुक अच्छी नहीं है? क्योंकि जो नॉर्मली मार्केट जो है वो आउटलुक को देख के एक ये ऐसा बिजनेस या कंपनी है जिसके फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, जिसके कंसोलिडेटेड अभी आपने स्टेटमेंट दी और स्टैंड लोन भी बताई, तो फिर इसकी क्या रीजन है? आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, मैं ये सवाल तो मुझे बल्कि आपसे करना चाहिए। सो आई थिंक मेरे पास का आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आंसर दिस, बिकॉज मार्केट क्या देख रही है, क्या एक्सपेक्ट करती है, तो आपकी फ्रेटर्निटी या ये जो हमारे दोस्त बैठे हैं ये बता सकते हैं। इट मे नॉट बी द बेस्ट फोरम टू हैव दैट कॉन्वर्जेशन, बट अभी मैं आई विल रिफ्रेन फ्रॉम आंसरिंग दिस इन मच मोर डिटेल, क्योंकि ये अभी एजेंडा इज Q2। मैं आई वुड बी वेरी रिलक्टेंट टू कमेंट ऑन दिस वन कि मार्केट कैसे देखती है आपको, या क्यों ऐसे देखती है, क्यों वैसा देखती है, कंपैरिजन। तो आई थिंक वो डिटेल्ड सब्जेक्ट है, कॉन्वर्जेशन हो सकती है ऑफलाइन भी, आप आके बात भी कर सकते हैं, मिल भी सकते हैं हमसे, बट नॉट द टॉपिक ऑफ दिस कॉन्वर्जेशन। जी जी, बहुत शुक्रिया। बस मैंने, चूंकि आपने वो काफी आउटलुक भी डिटेल और अच्छी बताई और फंडामेंटल भी स्ट्रांग है, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज है जो फ्यूचर में, लेकिन आपने जैसे बताया ऑफलाइन इसको बाद में लिया जा सकता? जरूर। Mr. Mustafa, please go ahead. अस्सलामुअलैकुम फारूक साहब। फारूक साहब, मेरे दो क्वेश्चंस हैं आपसे। एक, ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स में समद दाऊद साहब का आपके मैनेजमेंट में से इंटरव्यू छपा था, आपकी जो सब्सटैंशियल शेयर होल्डर्स में से, जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की बात की थी। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही शॉर्ट ऑन एफएक्स है। तो दैट इज वन ऑफ माय क्वेश्चन जो मैं आपसे जिसके ऊपर क्लैरिटी लेना चाह रहा था। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि डाइवेस्टमेंट के बाद कंपनी की फ्री कैश फ्लो की पोजीशन क्या एक्सपेक्टेड है, कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करी होगी, क्योंकि इसमें से काफी सारे जो बिजनेसेस थे कुछ फ्री कैश फ्लो जनरेटिव भी थे। तो ये मेरे दो क्वेश्चन हैं जी। देखिए, जो पहला वाला पार्ट है इंटरनेशनलाइजेशन का, वो शायद मैं बहुत कॉम्प्रिहेंसिव जवाब ना दे सकूं, बट मैं अपनी राय दे देता हूँ। देखिए, विद विद जैसे मैंने बताया, पोर्टफोलियो बैलेंसिंग सिर्फ फिक्स रिटर्न गवर्नमेंट बिजनेसेस से हटकर B2B बिजनेसेस में जाने का नाम नहीं है। पोर्टफोलियो बैलेंसिंग इस बात का भी नाम है कि डॉलर से आप कितने इंसुलेटेड हैं, इंटरेस्ट रेट से कितना इंसुलेटेड है, कंट्री रिस्क से आप कितना इंसुलेटेड हैं, क्या आपका सारा का सारा रिस्क पाकिस्तान में रिजाइड करता है, क्या सारा रिस्क गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में रिजाइड करता है। सो जब आप पोर्टफोलियो को देखते हैं तो यू ऑलवेज लव कि आपके थोड़ा सा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो हो, यू ऑलवेज लव कि आपका थोड़ा बहुत एक्सपोजर बाहर की तरफ हो, ताकि लॉप साइडेड ना हो जाए। इजियर सेड देन डन, जैसा आपने भी कहा, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बट एक होता है कि टू प्लान टू गो आउटसाइड। जब आपके पास कोई फीजिबल एंग्रो होल्डिंग्स की जब जब हम बात करते हैं, तो हम कहते हैं यार वी विल नॉट गो फॉर $100 million या $500 million प्रोजेक्ट, इवन इफ समथिंग इज वर्थ $20 million, एंड इफ इट इज अप फॉर ग्रैब्स, हम स्टेट बैंक के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू उसको एक बिजनेस केस प्रेजेंट करके वो अमाउंट रिमिट कर सकते हैं। और मुश्किल हो, आसान हो, अगर अगर प्रोजेक्ट अच्छा है और इनफ्लोस की एक्सपेक्टेशन है, तो स्टेट बैंक भी इसको सीरियसली कंसिडर इवेंचुअली करेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन हमारी एस्पिरेशन है कि हमारा पोर्टफोलियो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो हो, जिसके अंदर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एनी साइज, चाहे वो हमारे करंट पार्टनर्स के साथ है, फॉर एग्जांपल हम वोपैक के साथ काम करते हैं, मित्सुबिशी के साथ काम करते हैं अपनी कुछ कंपनीज में, क्या हम वहां पे उनका कोई, can we do some kind of partnership outside Pakistan, on a reciprocal basis? So ये सारी चीजें हम इस चीज को हर वक्त कंसिडर करते हैं। और जैसे मैंने बताया, साइज और सेक्टर एग्नोस्टिक होंगे हम, कि अगर साइज छोटा भी है और हमारी मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं भी है, बट वी कैन गेट अ प्लेटफॉर्म थ्रू एंग्रो होल्डिंग्स कि हम उसको बाइट साइज इन्वेस्टमेंट में अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करना शुरू करें। आई थिंक दैट्स द होल, मेरा अपनी राय ये है। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया, इसकी इसकी मोमेंटम अभी बिल्ड हो रही है, होनी चाहिए। अगले साल से जैसे एंग्रो होल्डिंग वजूद में आती है, इंशाल्लाह दैट स्पेक्ट्रम विल बी मोर विजिबल एज वी गो अलोंग, सो दैट्स वन।
जो दूसरा आपका शायद मैं सेकंड सवाल अगर आप बता दें जी, या आपका एक मैं ही सवाल। दूसरा सवाल ये पूछना चाह रहा था कि जैसे डाइवेस्टमेंट से पहले एंग्रो के हाँ हाँ फ्री कैश फ्लो वगैरह बहुत अच्छा जनरेट हो रहा था, जी 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 जी। तो अभी डाइवेस्टमेंट के बाद हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, बारिंग एनी न्यू इन्वेस्टमेंट, हमारा क्या फ्री कैश फ्लो जनरेशन एंग्रो के कॉप के अंदर कंसोलिडेटेड लेवल पे हम देख रहे हैं? देखिए फ्री कैश फ्लो जनरेशन, मैं थोड़ा सा आपकी बात को डिफरेंटली आई वुड से थोड़ा सा डिफर करूंगा। जो डाइवेस्टमेंट से पहले अगर आप हमारे पोर्टफोलियो का मिक्स का कैश फ्लो देखें, स्पेशली अगर आपने प्रॉफिट की बात नहीं करा, अभी आपने जो कैश फ्लो का नाम लिया तो मैं कैश फ्लो तक मैं आपको महदूद रखता हूँ। हमारे जो कैश फ्लोज हैं वो प्राइमरीली पॉलीमर से आते हैं, फर्टिलाइजर से काफी ज्यादा आते हैं, इसके बाद पॉलीमर से आते हैं, फिर इसके बाद टर्मिनल से आते हैं, और अभी ऑनफ्रा शेयर ने डिविडेंड की वो शुरू नहीं हुई है, तो आई वुड से 3 सोर्सेज से प्राइमरीली आते हैं, दोनों टर्मिनल से, वोपैक और एलएनजी से। जो एनर्जी बिजनेस है, अगर आप उसका ट्रैक उठा के देखें, 2019 से थर्ड लगा है और उससे पहले भी 2010 से कादिरपुर लगा है, तो एनर्जी हैज बीन अ वेरी कंसिस्टेंट प्रॉफिट गिवर फॉर द ग्रुप। प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन तो काफी ज्यादा है बिकॉज ऑफ अकाउंटिंग, जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन वो नेसेसरीली कैश में कन्वर्ट नहीं होता बिकॉज सर्कुलर डेट इतना ज्यादा है। ठीक है, ये साल काफी बेहतर कलेक्शंस हुई हैं, एंड इसके बावजूद भी आपने 100 रुपए की बिलिंग की है तो 98 रुपीज कलेक्ट किए हैं। तो इस बार भी सर्कुलर डेट में 2% इजाफा हुआ है हमारी बुक्स में, अगर देखा जाए तो ये बेस्ट ईयर है अब तक। तो अब तक तो 84, 85, 90% कलेक्शन हो रही थी। सो जो डाइवेस्टमेंट जिस पोर्टफोलियो का हम कर रहे हैं वो डिविडेंड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर नहीं था हमारे लिए, ये मैं करेक्ट करना चाह रहा हूँ। हेंस द आंसर इज दैट इवन आफ्टर द डाइवेस्टमेंट जो सेल प्रोसीड्स आएंगी सो आएंगी 34 बिलियन माइनस टैक्स, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो करंट बिजनेसेस हैं जो कैश फ्लोज आज दे रहे हैं वही आपके कंट्रीब्यूटर्स रहेंगे फ्यूचर में। सो मैं नहीं समझता कि कैश फ्लो अवेलेबिलिटी में, फ्री कैश फ्लो में ग्रुप लेवल पे कोई मेजर चेंज आएगा। सॉरी, थोड़ा लॉन्ग So in आंसर है terms बट of, ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड सर। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू हमारी क्या फ्री कैश फ्लो की एक्सपेक्टेशन होगी फॉर 2024 2025? बिकॉज 2023 वाज एक्सेप्शनल, उसमें बहुत ही ह्यूज फ्री कैश फ्लो था। देखिए आपका सवाल फेयर है। मैं सिर्फ उसके साथ जस्टिस करना चाहता हूँ उस आंसर के साथ, विदाउट गोइंग टू मच इनटू द आउटलुक्स एंड द फ्यूचर प्रोजेक्शंस। तो मैं कहूंगा कि हम 2023 में चूंकि हमने एक बहुत बड़ा डिविडेंड दिया था, जैसा आपने खुद कहा कि वो एक जंबो डिविडेंड कहते हैं, या एक साथ बहुत बड़ा लॉट दिया था, और शेयर बायबैक भी किए थे, तो दैट वाज अ स्टेप टेकन इन 2023। इस बार आई वुड से व्हाट एवर द अर्निंग्स दैट वी मेक, उम्मीद करते हैं कि हमारी अर्निंग्स के नजदीक होगा जो हमारा डिविडेंड प्रोफाइल है। सो इससे ज्यादा अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, सॉरी। थैंक यू। Mr. Imran, please go ahead. After this question, we'll be taking the final question. Assalamu alaikum. वालेकुम My सलाम। question is pertaining to the gas price disparity between agro fertilizer and FFC. Can you shed some light in terms of like, are you discussing with government in terms of having equal rates, or are there any discussions going on in regards to that? देखिए ये अगेन वेरी सेंसिटिव सब्जेक्ट एज फार एज वी आर कंसर्न्ड। आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग एक्चुअली। द गैस प्राइस डिस्पैरिटी सर्टेनली एक चैलेंज है हमारे लिए। हम देखते हैं कि जो गैस प्राइस ऑफ आवर कंपटीशन है वो काफी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट वी आर गेटिंग राइट नाउ एज अ कॉम्प्लेक्स। सर्टेनली इस डिस्पैरिटी के लिए हमारी कॉन्वर्जेशंस नॉट ओनली ऑन दिस बल्कि ओवरऑल गैस के जो एलोकेशन है, वेदर इट्स गैस की प्राइसिंग है, गैस की फ्यूचर अवेलेबिलिटी है, इसकी प्रेशर की इन्हांसमेंट है, बिकॉज गैस डिप्लीट भी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता कंट्री के अंदर। सो आई थिंक फॉर दिस सेक्टर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको होलिस्टिकली देखा जाए। प्राइसिंग इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दैट। सो वेदर गैस सही प्राइस पे मिल रही है, क्या गैस की जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर फिजिबिलिटीज हैं माड़ी के पास या एसएनजीपीएल नेटवर्क में, वो इतनी है कि फूड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान को अगले 10 सालों तक, 15 सालों तक क्या हम देख सकते हैं सेफली,
कि वो हैं या नहीं हैं, और उसको करने के लिए आपको पता है फर्टिलाइजर के प्लेटफॉर्म पे हम प्रेशर इन्हांसमेंट के ऊपर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। $300 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, सारी इंडस्ट्री मिलकर कर रही है, जॉइंट इन्वेस्टमेंट है। एंग्रो का शेयर तकरीबन $100 मिलियन है उसमें से। सो ऑल इन ऑल मैं कहना चाह रहा हूँ, गैस की प्राइसिंग, गैस की अवेलेबिलिटी, गैस की राइटफुल एलोकेशन, सो दैट इन्वेस्टर्स भी कंफर्टेबल रहें कि कोई सरप्राइज नहीं मिल जाएगा, ये सारी बातें हम गवर्नमेंट लेवल पे डिस्कस करते हैं एंड और हाईएस्ट लेवल पे। सो मैं समझता हूँ कि टू आंसर योर क्वेश्चन, यस वी आर टॉकिंग एंड वी अंडरस्टैंड गवर्नमेंट के अपने भी कुछ चैलेंजेस हैं। सो लेट्स होप के ऑल इसको एज अ पैकेज देखा जाए, इसको होलिस्टिकली, ताकि fertilizer manufacturing sector is able to cover the food security of Pakistan in a proper way, क्योंकि imports हमारे लिए possible और sustainable नहीं है। एक आध वैसल मंगवा लिया तो मंगवा लिया, लेकिन you can't import 6 million tons of urea या 7 million tons of urea in Pakistan. You just can't afford it. As an agriculture country, you must have this resource well equipped and for the long term. So ये मेरा आंसर होगा। Thank you. Last question, Mr. Talha Ganatra, please go ahead. Ji, Assalamu alaikum. I only have one question, and it's regarding Angro InfraShare. So basically, in the tower business, what we're saying is that the average revenue per user is not increasing in Pakistan, but on the other hand, the energy prices keep on going up, and a lot of MNOs, the mobile network operators, are exiting, like Telenor. So going forward, how do you see the profitability of Angro InfraShare, and are you on track to go towards 5,000 towers, or is there any change of plans? Thank you. Again, Talha, thank you for asking this very relevant question. This जैसे मैंने शुरू में बताया था, this business is very very important for us. Tower business हमने इसमें 3-4 साल पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, और अभी हम we have invested quite a bit. अभी हम 4,200 टावर साइन अप कर चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये ग्रोथ का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, एमएनओस का जो आरपू या एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि वो इतना तेजी से नहीं बढ़ा है जितनी तेजी से कॉस्ट बढ़ी है। लेकिन ऑफ लेट अगर आपने नोट किया हो तो जोंग हो गया या मोबिलिंक हो गया, सॉरी जैज, या इवन यूफोन, दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू इंक्रीज देयर प्राइस, क्योंकि वो भी समझ सकते हैं कि सर्वाइवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर, जो हमारे एक्चुअली प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनके लिए हम काम करते हैं। Obviously we can't impact their marketing strategy, we can't impact their volume strategy या geographical strategy, but हम उनको ऑब्जर्व जरूर करते हैं कि वो उनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर हैं उसमें कोई प्राइस इंक्रीजेस वो ले भी रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये उनकी सस्टेनेंस के लिए भी जरूरी है, और जाहिर है वो सस्टेन करेंगे तो हम भी सस्टेन करेंगे। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, कुछ इंक्रीज आया है ऑफ लेट। अगर आप पिछले 3 सालों का ट्रेंड देखें तो ट्रेंड थोड़ा चेंज हुआ है पिछले 7-8 महीनों में, एंड दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू टेक प्राइस इंक्रीजेस, क्योंकि पहले वो एक जंग होती है वॉल्यूम की, कि भाई मेरे यूजर्स कितने होंगे, और जिसको कहते हैं अंडर कटिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे को काट रहे होते हैं, प्राइस वॉर जिसको कहते हैं। वो प्राइस वॉर से अब थोड़ा सा हटके लोग अब एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ भी फोकस कर रहे हैं। एंड विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल, ऑफ कोर्स ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, सबकी अपनी अपनी आगे की आउटलुक है, बट इतना कोई परेशानी वाला टाइम नहीं है कि जिसमें हम कहें कि वो अनसस्टेनेबल हो गए हैं, क्योंकि प्राइस और ज्योग्राफी यूजर्स का इंक्रीज बिल्कुल इट्स अ वेरी वेरी इलास्टिक मार्केट। सो दे जस्ट हैव टू बी केयरफुल कि जितना वो प्राइस बढ़ाएं और दूसरे ने नहीं बढ़ाई तो फिर आपके यूजर्स स्विच कर जाएंगे, एंड दैट्स अ होल डिलेमा। इट्स अ परफेक्ट मार्केट ऑलमोस्ट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, हम अभी भी, और यूफोन ने एक्वायर किया टेलीनॉर को, सो ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी कि 4 MNO मार्केट से 3 MNO मार्केट बन जाएगी, जो कि बन गई। इट वाज ऑलवेज एंटिसिपेटेड, तो वी आर नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री में, इस साइज की कंट्री में, इस तरह के कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की कंट्री में 3 MNOs की मार्केट तो हम बहुत पहले से प्रिडिक्ट कर रहे थे, बिकॉज इनको सबको अपना एक यूजर्स का बेस चाहिए होता है, इतने मिलियन यूजर चाहिए होते हैं टू सर्वाइव एंड सस्टेन। और अब आई थिंक वो तीनों जोंग, जैज और यूफोन एक डिसेंट साइज पे आ गए हैं आफ्टर दिस मर्जर, तो अब एक बैलेंस आ गया है, रादर देन एक अनसस्टेनेबल बैलेंस जो था पहले। So because obviously size is very very important. So that's on the MNO side. मैं इसको conclude यूं करूंगा कि कोई बहुत ऐसा भी कोई crisis में नहीं है, otherwise why would have Ufone purchased Telenor? That's something.
नंबर 2 जो है कि हमारा इरादा ऑफ ग्रोइंग, यस मैंने जैसे कहा दिस बिजनेस इज फॉर फ्यूचर, जैसे ही और हमारे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 15 साल के, जिसमें एस्केलेशंस भी होती हैं और इंडेक्सेशंस भी होती हैं। सो वी स्टैंड प्रीटी सिक्योर्ड इन दैट बिजनेस। और हमारा जो अब तक का जो ट्रेंड भी रहा है, जैसे मैंने कहा एबिटा वाइज ये बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है माशाल्लाह। ऑल वी नीड इज अ बिट ऑफ अ सपोर्ट ऑन द इंटरेस्ट साइड। जैसे इंटरेस्ट रेट कम होते हैं, दिस बिजनेस विल यू विल सी दैट ग्रोइंग अगेन, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम 5,000 पे पहुंच जाएंगे। 5,000 से बल्कि ऊपर का प्लान तो हमारा इससे ऊपर का ही है, लेकिन 5,000 तो एक पहला हदफ है जो हम अगले साल 1.5 साल में इंशाल्लाह अचीव कर लेंगे। जी शमीर, एनीथिंग ऑन द टेक्स्ट साइड आप कुछ रीड आउट करना चाहेंगे शमीर? Our team is answering the questions which have been posted on the chat. ओके, And our team will be available for the next 10 minutes to answer all the queries which are being posted on the chat. Otherwise, our LSB for the first half has concluded. Thank you so much, everyone, for joining. थैंक यू एवरीवन जी, हाफिज़।